वो बहुत पैसे छापना चाहता है। उसने तुम पे जादू कर दिया है। जो बीत गया सो बीत गया। मैं कमर तोड़ मेहनत से थक गया हूँ। इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसी तरह के कुछ और सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि एक बात को हम किस तरीके से मल्टीपल वेज में कह सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वो भर भर के पैसे छापना चाहता है। कहने का मतलब वो बहुत पैसे कमाना चाहता है। आप इंग्लिश में बोलिए, ही वॉन्ट्स टू मेक अ फॉर्चून। ही वॉन्ट्स टू मेक अ फॉर्चून। मेक अ फॉर्चून means to earn a lot of money. You can also say he wants to make a ton of money, or he wants to make a pile of money. He wants to make a killing. इनमें से आप कुछ भी बोलेंगे उसका मतलब यही है कि वो भर भर के पैसे कमाना चाहता है, वो बहुत पैसे कमाना चाहता है। He wants to make a lot of money. He wants to earn a lot of money. Makes a ton of money, makes a pile of money. He wants to make a killing. He wants to make a fortune. इस तरीके से जब आप बोलते हैं, you sound very impressive. Anybody can easily notice that your English is superb. मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जैसे किसी ने बोला ये खरीद लो, फिर हम जवाब दे रहे हैं मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इंग्लिश में कैजुअली ऐसे बोलते हैं, I don't have that kind of money. I don't have that kind of money. उस तरह के पैसे, इसका मतलब ये नहीं उस तरह के पैसे, इसका मतलब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। I don't have that kind of money. इसी तरह का जब आपको जवाब देना है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, I can't afford that. मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं खरीदूँ। I can't afford that. It's out of my league. It's out of my league. If something is out of your league, it means it's way too expensive. It's so expensive that you cannot buy that. It's out of my league. I'm a bit short on cash for that. I'm a bit short on cash for that. उसके लिए I'm a bit short on cash. I am short on cash. मतलब मेरे पास कैश कम है, पैसे कम हैं. I am hard up. Money is tight. I don't have enough. I'm short of money. Short of cash, short on cash, on off में से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। वो इतना बुरा नहीं है जितना सब कहते हैं। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे कहेंगे he is not as bad as everyone says. जैसा सब कहते हैं, he is not as bad as everyone says. जैसा सब कहते हैं वो इतना बुरा नहीं है। You can also say he's not as bad as people make him out to be. He's not as bad as people make him out to be. You make someone out to be something. मतलब आप उसको उस नज़र से देखते हैं, आप उसको वो समझते हैं। He's not as bad as people consider him. He's not as bad as people regard him. Or he's not as bad as people make him out to be. जैसे he made me out to be a fool. He considered me a fool. He made me out to be a lawyer. He thought I was a lawyer. He is not as awful as everyone claims. जैसा सब क्लेम करते हैं वो इतना बुरा नहीं है। बैड की जगह पर आप एक वर्ड यूज़ कर लो, awful. He is bad. He is not bad. He is not awful. He is not horrible, terrible, contemptible, despicable. There are so many words we can use. He is not as villainous as everyone assumes. जैसा सब assume करते हैं, जैसा सबको लगता है, he is not as villainous. ऐसा बदमाश, ऐसा बुरा, इतना बुरा वो नहीं है. He is not as villainous, as awful as everyone assumes. इस चीज़ पे तुम हंस कैसे सकते हो? You might be thinking, how the hell did I take such a simple sentence? I took this one because I want to make something clear. How can you laugh about it? How can you laugh about it? आपने देखा होगा कि laugh के साथ at आता है, लेकिन laugh about यहाँ पे कैसे आ रहा है? जी हाँ, laugh के साथ about आता है, at भी आता है. Don't laugh at me. मुझ पर मत हंसो. तो हम क्यों बोल रहे हैं how can you laugh about it? Laugh about का यूज़ आप कर सकते हैं when you're talking about a situation that was amusing, that was funny, something funny happened, and you're laughing about that situation, about that event, about what happened. How can you laugh about it? जैसे कुछ भी बुरा हुआ है किसी के साथ, तो कोई उसकी इंसल्ट कर रहा है, हंस रहा है, तो हम बोलते हैं ना, how can you laugh about it? तुम उस बात पे हंस कैसे सकते हो? Don't laugh at me. यहाँ पे at आ रहा है. When some person is the object of laughter, the object of ridicule, you're ridiculing that person, you're laughing at that person. We laughed about his bad interview. उसका बैड इंटरव्यू आता, तो ये बैड इंटरव्यू होना एक ऐसी सिचुएशन है जिस पर हम हंस रहे हैं, जिस सिचुएशन को सोचकर हम साथ में हंस रहे हैं, हम हंसे. We laughed about his bad interview. कमर तोड़ मेहनत से मैं थक गया हूँ. इंग्लिश में आप ये कैसे कहेंगे, कमर तोड़ मेहनत? हम बोलेंगे आई एम टायर्ड ऑफ बैक ब्रेकिंग वर्क. आई एम टायर्ड ऑफ बैक ब्रेकिंग वर्क. आप इसको एज एन एडजेक्टिव इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, दिस वर्क इज़ बैक ब्रेकिंग.
बहुत मुश्किल काम है इसका मतलब. दिस वर्क इज़ बैक ब्रेकिंग. दैट जॉब वॉज बैक ब्रेकिंग. वो काम, वो जॉब तो बैक ब्रेकिंग थी, सो आई क्विट इट. दैट जॉब वॉज बैक ब्रेकिंग. इट विल टेक अ वीक ऑफ बैक ब्रेकिंग वर्क. जैसे कोई काम है, मैं बोल रहा हूँ इस काम को करने में तो 1 हफ्ते की कमर तोड़ मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी. इट विल टेक अ वीक ऑफ बैक ब्रेकिंग वर्क. उसने तुम पे जादू कर दिया है. लाइक वी आर सेइंग दिस टू अ बॉय हु इज़ मैड अबाउट अ गर्ल. उसने तो तुम पे जादू कर दिया है. शी हैज़ कास्ट अ स्पेल ऑन यू. शी हैज़ कास्ट अ स्पेल ऑन यू. और शी हैज़ बिविच्ड यू. उसने तुम्हें बिविच कर दिया है. शी हैज़ बिविच्ड यू. शी हैज़ enchanted you. Cast a spell, bewitch or enchant means to have a strong influence on someone, to have a good impression on someone. Someone becomes crazy about you, or someone behaves in a particular way in which you want him or her to behave. जो बीत गया सो बीत गया. अब कुछ लोग पुरानी बातों को लेकर बैठे रहते हैं, तो हम उनको ये सलाह देते हैं ना, छोड़ो, भूल जाओ. जो बीत गया सो बीत गया, जो हुआ सो हुआ. Let bygones be bygones. Let bygones be bygones. इसका मतलब होता है जो बीत गया सो बीत गया. इससे मिलता जुलता एक और मैं आपको बताता हूँ. Just bury the hatchet. Bury the hatchet. इसका यूज़ तब करना है जब आप किसी से नाराज़ हैं, कोई झगड़ा हुआ है, तो उस झगड़े को भूल जाओ, छोड़ो, जो हुआ सो हुआ. Just bury the hatchet. तो ये झगड़े के केस में. नहीं तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं? Leave the past in the past. Leave the past in the past. पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दो. Leave it. Don't worry about it. Don't fret. मैंने झट से नौकरी छोड़ दी. कभी कभी हम झट से कोई फैसला ले लेते हैं, फटाफट, बिना सोचे समझे. इंग्लिश में कहेंगे आई क्विट द जॉब ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट. ये फ्रेज मैं आपको बताना चाहता हूँ. ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट. When you do something on the spur of the moment, it means you do it all of a sudden. You do it suddenly. You take a quick decision. It might make you regret later, but now you take that decision quickly, on the spot, then and there, right away. तुरंत, फौरन, उसी वक्त, without considering the consequences. I quit the job on the spur of the moment. We decided to go on a trip on the spur of the moment. हम ट्रिप पर नहीं जाने वाले थे, अचानक हमने फैसला कर लिया एक ट्रिप पे जाने का. We decided to go on a trip on the spur of the moment. इस on the spur of the moment की जगह पर आप in the heat of the moment भी कह सकते हैं. We decided to go on a trip in the heat of the moment. लेकिन in the heat of the moment का यूज़ आपको ध्यान रखना है, तब करना है जब आपका कोई इमोशन बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा आप एंग्री हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा इवन अगर डिलाइटेड भी हैं. इमोशन में कोई फैसला ले लेते हैं, मतलब वी टेक दैट डिसीजन इन द हीट ऑफ द मोमेंट. इट्स मोस्टली यूज्ड व्हेन समवन इज एंग्री एंड ही डिसाइड्स टू डू समथिंग. सो वी से ही डिड दैट इन द हीट ऑफ द मोमेंट. आप कह सकते हैं ऑन अ whim. इफ यू डू समथिंग ऑन अ whim, मतलब फटाफट से आपका मन किया और आपने वो चीज़ कर दी. यू डिड दैट ऑन अ whim. आई वेंट ऑन अ ट्रिप ऑन अ whim. बस मन में आई और मैं चला गया, तुरंत एकदम फैसला लिया मैंने. आई वेंट टू द पार्टी ऑन अ whim. मैं पार्टी में नहीं जाने वाला था, लेकिन अचानक बस मन किया, एकदम अचानक मन में आई और मैं चला गया. आई वेंट टू द पार्टी ऑन अ whim. आई बॉट अ फोन ऑन अ whim. फटाफट से मन किया, तुरंत मैं गया, फ़ोन खरीद लिया. आई बॉट अ फोन ऑन अ whim. सो यू डू समथिंग ऑन अ whim. सो यू डू समथिंग ऑन अ whim. इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप इसी तरह के वीडियो लेसन्स को देखते रहना चाहते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं. सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, बाय बाय.